Hello, dear RBI aspirants. I hope you are doing great. Welcome to CGB Mentors. My name is Sonika Seni. So, I am assuming that you are now ready for your battlefield, and yes, you will give it all what you have done in this entire year, 2-3 years. So, since I was checking few papers for descriptive, and I thought why not to guide the aspirants in the last moment, right? कि top 10 और 12 चीजें क्या हैं जो आपको दिमाग में रखनी है while attempting the paper on your D-Day. The very first thing which I want to intimate is आपको सब पता है already, right? But मुझे एक चीज समझ में आई कि सब पता सबको सब कुछ होता है. It is just how you act on it. It is just how you implement on it, है ना? हम वो चीज भूल जाते हैं, but if someone reminds you कि भाई ये बातें दिमाग में डाल लो, फिक्स कर लो, तो कहीं ना कहीं वो आपके फिक्स हो जाती है and you will try to act or implement it. So let's discuss quickly. It will be a very quick video, right? Let's discuss very quickly कि क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है while attempting your descriptive paper, because descriptive holds a larger chunk and it is very important कि उसमें हमें क्या दिमाग में रखना है. So do not chase perfection. Do not chase perfection. Chase completion. See, when I was checking the test, I was witnessing that I also see the timer that कुछ questions पे they were spending 30 minutes and कुछ questions पे they were spending only 15-16 minutes, and sometimes the time was so less that they were not attempting only, or even if they're attempting just 3-4 lines. So you do not have to chase the perfection, right? The examiner is not going to reward you for more perfect answer, but it will cut your answer, it will cut your marks if you are not able to write a proper or an average answer. So rather than writing, one very best answer, try to write all the 4 answers of each paper, all the 4 answers and average or above average. That would reward you more marks, because one perfect answer will give you more than like maybe 2 marks, but 2-3 below average will बेसिकली आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे. तो कहां पे आप, इफ यू बैलेंस इट, यू ऑल्सो नो दैट, राइट? इतना तो क्वांट आपका भी अच्छा है. सो आपको यहाँ पे परफेक्शन पे नहीं भागना है, सिर्फ अपने आपको पेपर कंप्लीट करना है. दैट शुड बी इन योर वर्ड लिमिट. हर एक जस्ट डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन क्वेश्चन कि भाई ये तो मुझे आता है, मैं तो इसमें फाड़ दूंगा. कर सकते हो, नो डाउट. जो चीज आपको आती है वहां पे आप अपना अच्छा परफॉर्म करना, बट दैट डजंट मीन कि आप लेट्स से 90 मिनट्स या 30 मिनट्स आप उसी क्वेश्चन पे दे रहे हो. प्लीज 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 डू नॉट डू दैट, बिकॉज आई ऑल्सो यूज्ड टू चेस परफेक्शन. वैसे मेरा पेपर अच्छा खासा टाइम टू अटेम्प्ट हो जाता था, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाते थे, बट आपको वो चीज नहीं करनी है. नाउ balance introduction and conclusion. While reading the paper, I witnessed that people were so short of time, right? Students were so short of time कि conclusion पे उनका ध्यान ही नहीं जाता है, and introduction भर भर के लिखते हैं. I'm not saying कि मत लिखो. All I want to say that please balance introduction and conclusion in a way, because both are important for an examiner. If you think that introduction के ज्यादा मार्क्स है, conclusion में कम है, ऐसा नहीं है. जो पैरेंटल्स डिसाइड होता है ना चेकिंग के, कंक्लूजन और इंट्रो, दैट इज ऑफ इक्वल मार्क्स ओनली. कितना है वो हमें नहीं जानना है. सो whenever you are writing the intro of your question, balance it out with that particular conclusion. It should be beautiful. Why? Because it is ending your answer, right? So जितना intro important है, उतना conclusion भी important है. ठीक है. Third point is length and breadth. See, I have seen that whenever students and aspirants are writing the answers, तो वो क्या कर रहे हैं, let's say 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं या 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं. अब उस 3 या 4 पॉइंट्स में वो क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को बहुत ज्यादा इलैबोरेट कर रहे हैं. वेयर एज डिस्क्रिप्टिव आंसर इज शैल बी मोर ऑफ अ पॉइंटर्स. आई एम नॉट सेइंग कि भर भर के 15 लिख दो. लेट्स से आप यहाँ पे the number of lines will be same only, but if you write instead of 4 points, let's say 6 points, and यहाँ पे आप 2-2 लाइन लिखते हो, let's say 8 lines, but in that let's say 8-9 यहाँ पे लाइन लिख रहे हो, बट यहाँ पे पॉइंटर 6 ले रहे हो, लाइन्स 8-9 ही है. So that would fetch you more marks, because let's say assuming that some kind of AI is checking your paper, and AI क्या देखता है कि इसने ये लिखा है. That means you have mentioned more of the schemes, more of the initiatives, mentioned more of the keywords like sustainable development, livelihood opportunities, economic empowerment, education empowerment, all of that. So try to make your pointers more rather than going to one pointer into the breadth. ठीक है. तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट डज नॉट मीन कि आप जब वो एक पॉइंट है वो लिमिटेड लिखेंगे, उसको आपको अच्छे से एनालिटिकल वे में एक्सप्लेन करना है. कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट नाउ. ठीक है. कमिंग फॉरवर्ड, डेफिनेशन. ठीक है. अब मुझे एक बात जो समझ में आ रही है, some students are also writing definitions whenever it is not required also. Every time definition is not required, guys. Let's say question is of climate change. भाई climate change, let's say एक question था मॉक्स में, that was climate finance. Now instead of writing the definition of climate finance, people are writing definition of climate change.
Why? There is no need. When you are writing anything about climate finance, that means that you being an RBI aspirant, the examiner doesn't want to know climate change. He knows it already. What is climate change? The changing in the patterns of the amount of period of time and what are the causes and effects. No, just write what is climate finance and why it is needed. That shall be your intro. So अपना जो definition है, let's say agriculture पे है, तो do not write what is agriculture. SMEs पे है, don't write this is micro, small and enterprises. No. You have to direct come what has been asked in the question. Please don't do this mistake. It looks lame. It looks like you are not a person who's grown up, right? आपको definition लिखनी है, but जो पूछी जा रही है वो लिखनी है, और basic definitions like what is agriculture ये सब नहीं लिखना है, ठीक है? Let's come to the next point. Read the demand of the question. Sometimes the questions जो भी पूछा गया है वो नहीं एड्रेस हो रहा है, ठीक है? Let's say discuss आ गया. That means you have to discuss everything. Be it the challenges, be it the measures taken by the government, right? Be it the advantages, if any, right? Or be the significance, or maybe the objectives. However, you have to analyze it there and there itself. अगर आपने क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट नहीं करा, और आई मीन टू से दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन, सो स्पेंड एटलीस्ट 20 to 30 seconds, spend at least 1 minute, I would say, to understand the question. Take a paper, obviously you will take that, take a paper and just write down the keywords that is being asked in the question. कि अच्छा, let's say climate finance ही पूछ लिया, so okay, I have to write climate finance. Then what is the challenges that climate finance में क्या challenges आ रहे हैं, ठीक है? मुझे challenges लिखने पड़ेंगे, and what are the measures as per the recent report that is basically will improve the climate finance, right? So आपको वो keywords लिखने हैं कि ठीक है मुझे ये चीजें लिखनी है. Then again write कि मैं क्या क्या challenges लिख सकती हूँ, क्या क्या measures लिख सकती हूँ. Now sometimes people, you know, they just mix the concept of climate finance and climate change. आप challenges में आप climate change के challenges नहीं लिख के आओगे कि क्या challenge आ रहा है that you are not able to finance the climate change. I'm just telling you by way of example that you have to understand the question. ठीक है, चलिए, ignore the fuss. It is very important. My personal experience, once I was writing the mains examination and some guy, you know, he was just pressing the keys so hard, like tuck 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 tuck. It was so hard that it was distracting me in the initial 5 minutes. And I asked him, he was sitting beside me. I asked him that why you are pressing it so hard. There are other aspirants as well. He was like, it gives me confidence that the key is being typed in the examination hall. Otherwise, I assume that मेरा key type ही हुआ है. I was like, but you are distracting others, right? Don't do this. Then he toned his the voice, ठीक है? आपका तो आप क्या है, आप उस चीज को इग्नोर करो. अगर बहुत ही ज्यादा फर्स्ट हो रहा है आप उसको बोलो, है ना, आसपास है. प्लीज डो नॉट हेजिटेट इट. इट इज योर डे, इट इज योर डी डे. हेजिटेट मत करना. नंबर 2, अगर आपको लगता है कि वो नहीं मान रहा है, टॉक टू द इन्विजिलेटर. उससे बात करो कि भाई ये ऐसे बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जो भी है. ऑल्सो व्हेन पीपल टाइप सो फास्ट, डू नॉट गेट अंडर कॉन्फिडेंट. सम एस्पिरेंट्स डू गेट अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड दे थिंक दैट कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है ना, ऐसे क्यों हो रहा है, और ये सारी चीजें. तो उन सारी कीवर्ड्स की आवाज सुन के आपको कॉन्फिडेंट रहना है. ये नहीं है कि वो ज्यादा टाइप कर रहा है, इसको ज्यादा आता होगा, नहीं. अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देना है, ठीक है. देन ईच क्वेश्चन टाइमिंग्स अलॉट. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ईच क्वेश्चन की जो टाइमिंग्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन पीपल दैट स्पेंडिंग 30 minutes 35 minutes ऑन द क्वेश्चन. नहीं, आप एक मोटा दिमाग में लगा लीजिए कि देयर आर 90 minutes, right? मोटा दिमाग में लगा लीजिए there are 90 minutes for 4 questions, right? Then you have 30 20 and 20 60 70 80 यही होता है ना. ज्यादा लिख दिया. 1 second. हाँ, 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो फॉर द 15 मार्कर, लेट्स से इट इज 25. क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा? नहीं. यू विल आल्सो हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, फिर एक आधी की गलती भी हो सकती है, इधर से उधर कुछ भी हो सकता है. तो आप हमेशा मान के चलिए कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में, और बैक काउंटिंग कर लीजिए, है ना, 90 89 88 ऐसे चलता है. अपने पेन पेपर पे लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती थी कि जैसे मान लो 90 मिनट्स का एग्जाम है, मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से आई हैव टू कंप्लीट इट इन 23 minutes, और लेट्स से 25. तो आई विल राइट हियर व्हाट 75, है ना, 75 नहीं, सॉरी 65. कि जब यहां पे मेरा टाइमर 65 मिनट्स हो जाएगा तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगेन आई वुड राइट अनदर कि इतने मिनट्स पे मेरा सेकंड क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतने मिनट्स पे मेरा थर्ड क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतने मिनट्स पे मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो जाना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में आपको 20 मिनट्स नहीं मिलेंगे. यहाँ पे आपको यू हैव टू डू दैट इन 17 मिनट्स. अगेन 17 मिनट्स फॉर द 600 मार्कर. यू हैव टू कंप्लीट दैट इन 23 मिनट्स. क्योंकि बहुत होचपोच होता है, शोर होता है ना, टाइपिंग एरर्स होते हैं. यू विल करेक्ट इट
एंड यू विल मेक द माइंड मैप्स ऑल्सो. तो इतना इतना आप इसको एस्टिमेशन लगा के चलिए. देन कीवर्ड्स. सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन वेरियस कीवर्ड्स इन योर कंक्लूजन. फॉर एग्जाम्पल like financial inclusion, inclusive growth, Viksit Bharat, है ना, strengthening and capacity building, or do not write like government should improve this, right? Like strengthening and institutional of capacity building, strengthening government institutions rather than writing improving government, है ना, or right, strengthening government institutions, that looks quite good. Or like inclusive, this capacity building, है ना, और Viksit Bharat, ठीक है, Viksit और $5 trillion economy, sustainable development, ऐसे keywords का आप क्या करो, इस्तेमाल करो. चलिए ये क्या हो गया, रीड द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन. आई थिंक मैंने कंप्लीट करा है ना, पीछे ये कंप्लीट हो चुका है हमारा. देन चेक द कीबोर्ड एंड वायर्स. सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि सारी कीबोर्ड की सारी कीज काम कर रही है. सारी वायर्स देख लीजिए, इधर उधर कोई लूज तो नहीं है, बीच में एक बार अटक गया तो आपका एग्जाम अटक जाएगा, तो एक बार ये भी कर लेना. देन डोंट डंप टू मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स. सो आई हैव सीन अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड एक्सप्लिसिटली, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपको नहीं डंप करना है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता है एसडीजीज पे तो मैंने डाल दिए, ग्लोबल जेंडर गैप पे पता है तो मैंने डाल दिए. नहीं, द आरबीआई इज नॉट आस्किंग यू टू डंप द फैक्ट्स दैट दे हैव चेक्ड इन फेज 1. दे वांट टू चेक योर एनालिटिकल पावर, योर थिंकिंग पावर, राइट, दैट हाउ यू थिंक, हाउ यू एग्जामिन इट. दे डोंट वांट टू सी. आई एम नॉट सेइंग डोंट राइट इट, यू हैव टू राइट इट, बट यू हैव टू एनालाइज इट ऑल्सो, कि आपने अगर ये लिखा है कि इंडिया का रैंक इतना है तो ये परफॉर्मेंस कैसी है और कैसे और अच्छी हो सकती है. दैट इज व्हाट इज बीइंग देयर. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि दे जस्ट टेल द फैक्ट्स बट यू हैव टू एनालाइज इट. ठीक है, कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ. this point, analysis versus descriptive. When you're writing descriptive, it means you're just writing it various facts. You're writing ठीक है, SMEs का इतना रोल ये है, इतना एक्सपोर्ट है, इतना इंपोर्ट है, ये वो नहीं, बट आपको वहां पे उसको एनालाइज भी करना होगा कि लेट्स से they are having what SMEs export. So boosting what? Livelihood opportunities, boosting what? Women, boosting what? Leading to what? Reduce in poverty, correct? So you have to give the analysis part of also, because I have seen many answers, they have not written the analytical perspective of it. You have to analyze it when you are giving the facts. चाहे वो reports का ही question ना हो. RBI would never ask you to write the facts whether you know or not. They will definitely ask you कि उस चीज को कैसे, है ना, उस चीज को कैसे आपको एनालाइज करना है. मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं. आई होप यू गेट इट. मुझे एक आधे मॉक्स का अगर आएगा एग्जांपल दिमाग में, फिलहाल पता नहीं वो क्लाइमेट फाइनेंस वाला ही आ रहा है, बिकॉज आई हैव चेक्ड लॉट ऑफ आंसर्स. लेट्स से क्लाइमेट फाइनेंस का ही है, या फिर लेट्स से कोई रिपोर्ट के बारे में वो बोल दिया कि जस्ट टेल मी द फाइंडिंग्स, बट विद दैट फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट यू ऑल्सो हैव टू टेल दैट हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इट, है ना, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इट. लेट्स से एजुकेशन की बात हो रही है तो ठीक है, एजुकेशन में हमारा अच्छा रोल है, ठीक है, इट इज इम्पैक्टिंग व्हाट, चेंजिंग लाइव्स ऑफ पीपल, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हैव बीन इंक्रीज, वुमेन इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ बेटर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन. जस्ट ट्राई टू थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए भी हर एक चीज का डिडक्शन वहां पे होना जरूरी है. एक चीज जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है और अभी मुझे एकदम से याद आई है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं ये चीज उनके लिए है कि वहां पे राइट द इंटरफेस इज लाइक दैट यू बिटवीन टू पैराग्राफ्स और बिटवीन टू बुलेट पॉइंट्स देयर इज नो स्पेस. वहां पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा, कोई भी लाइन छोड़ने का स्पेस नहीं मिलेगा. सो यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर. वहां पे आपको एक दिया जाता है स्टार्टिंग में कि एंटर प्लस शिफ्ट करके या खाली एंटर करके कुछ तो होता है, मुझे भी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा. तो whenever you will press enter, so only one time enter will be there. So आपका लाइन यहाँ पे आ जाएगा, स्पेस नहीं होता है. So in mocks what was happening that there were people who were writing बहुत सारे स्पेसेस लेके, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. दूसरी बात, एक बार जो लिख दिया प्लीज डू नॉट राइट टू, ऐसा लिखो कि आप उसको इरेज करने की जरूरत ना पड़े. I'll tell you why, because whenever you erase it, right, आपका कर्सर जो है ना वो कहीं से भी इरेज होने लग जाता है. ट्रस्ट मी, लेट्स से योर कर्सर इज हियर एंड यू वांट टू इरेज दिस लाइन, और ऐसे आपने 4 लाइन लिखी है, आप यहाँ अपना कर्सर लेके आते हो कि मुझे ये वाली लाइन नहीं चाहिए, और मे बी द डेटा इन फैक्ट लेट्स से आई वांट टू चेंज इट. सो ये वाला जो कर्सर है वो यहाँ नहीं, यहीं पर ही रहता है, ये सारा मिट जाता है. एंड देन यू रियलाइज ओके आई वांट टू इरेज दिस, एंड ये सारे हो गया. इट विल क्रिएट पैनिक. क्यों? क्योंकि आपने 4 लाइन लिखी, आपको 1 लाइन हटानी थी, आप 4 लाइन हटा चुके हो, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपका थॉट खराब हो गया कि आप क्या लिखना चाह रहे थे. योर थॉट प्रोसेस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड. देन यू विल क्रिएट पैनिक कि भाई मेरे पास तो कम टाइम है फॉर दीज मेनी वर्ड्स. सो सोच समझ के लिखना. अगर आपने कोई फैक्ट गलत किया है तो चलो ठीक है, वो तो इमरजेंसी आपको करना पड़ेगा. अगर आपको लगता है कि भाई ये लाइन तो मैं और अच्छी लिख सकता थी, या उतना टाइम नहीं होता, जितना लिखा है बस कोई बात नहीं, लिख दिया, आगे बढ़ो. और इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है,
इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे मत आने देना। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा आता था, सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, एक बार ये क्वेश्चन अटेंड कर लिया आपने, मत सोचो उसके बारे में, घर जाके रोना पीटना जो भी करना है कर लेना, ये मैंने पढ़ा नहीं, ये ना, ऐसा वैसा घर जाके करना। अभी के लिए अगर आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उस पर फोकस कीजिए, ट्राई टू डू दैट, डू नॉट थिंक ऑफ द अदर क्वेश्चंस कि भाई 2 क्वेश्चंस एवरेज है, 2 अबव एवरेज है, डजंट मैटर, दिस इज योर बैटलफील्ड, यू हैव टू परफॉर्म इट वेरी वेरी वेल। एक चीज और थी बस बिल्कुल अभी इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा चलो ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एक चीज दिमाग में आई थी एंड इट वाज इंपॉर्टेंट बट अभी मेरे दिमाग से वो आ नहीं रही है। चलो, सो यस दिस वाज इट। आई नो यू ऑल नो all these things but if I keep you reminding and these are the 10 12 13 things जो भी आपको it will definitely help you बारी बारी एक बार तो at least ये बोलिए अपने आप को and stay confident whenever you are writing a descriptive। check your keyboard, कई बार कीबोर्ड बहुत कंफर्टेबल होते हैं, वो वाले कंफर्टेबल कीबोर्ड मिल जाए then well and good and all the very 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 best and hope you will do it and you will definitely crack this year and all the very best from the entire team of CGB Mentors. Thank you very much.